Hello and welcome to RiffScript Presents All Fingers and Thumbs, a brand new podcast series in which we are going to have interesting conversations on various topics with a lot of different people. The aim of this podcast is to give you an opinion and experiences of those people who are trying to make it in their own fields. I'm Janish Soni. My name is Harshvardhan, and you must be wondering that what's behind the name All Fingers and Thumbs. So, Janish, if you would like to explain the meaning first, and then we'll move forward. Meaning of this idiom, all fingers and thumbs, is naive. So we are all naive beginners in our fields, and we are trying to gain expertise. So our aim is to have conversations of those people who are trying to make it in their own fields. Okay. So, like we were wondering that what topic we should choose for the very first podcast. Then we both are engineers, and since we thought that engineering is the most common topic in our Indian education system, so we thought of starting off with this particular topic, that is engineers. Well, there have been many jokes, films, memes about engineers and claiming that engineers are desperate and they are losers. But I don't think so. It's like that. Yes, it is up to some extent, but then after some extent, it doesn't feel like so. Also, apart from this, every year nearly 1.5 million engineers get their degrees, and hence we can claim that India is a land of engineers. So today we will be, we both, I and Janish, we are engineers, and apart from that, other two engineers who are doing something great in their respective careers, they'll be joining us tonight as well. Tonight, today, when they'll be joining us today as well, and Janish will be introducing them. So the first guest for this podcast is an entrepreneur and an excellent, skillful interior designer. Her name is Prayashi Patel. And the second guest of this podcast is Bansri Pancholi, who is a civil engineer by profession, and she is currently living in United States of America. Hello, guys. Welcome to this podcast. So let's directly jump on to the questions. Very first question is, okay. The very first question is, after engineering, what are you guys working on these days? I mean, jobs चालू हैं आप लोग की या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? Does you want to go first? Yeah. Actually, I have started interior designing. Actually, I'm doing freelancing in interior designing. She's So lying. after engineering, I did master course on interior designing, and yeah, I'm doing freelancing in interior designing, and I'm thinking to start my firm soon. I think she has Okay, already okay, started, that's but great. let's And still see. She's quite humble. That's why she's saying things like this. and what about What about Bansri? What are you doing these days? After engineering, I say I'm still doing engineering. I don't know if that's unfortunate or fortunate, but so I did my major in civil engineering, and right now I work in a railroad construction industry. So, yep. And I unfortunately don't work from home. So people who don't understand American English, it's railroad industry. good to hear that, guys. Like, you are doing something good in your lives after engineering, right? So let's begin on to the second question. Like, how did you guys landed up in engineering? Obviously, like for example, I did not want to do engineering at the very first instance, but circumstances ऐसे थे, situations ऐसी थी, then I had to go for it. And I am an IT engineer, but I don't take proud in it because somewhere down the line, I believe that I have not given enough justice to the studies that were given to me. So beginning with Jainesh, आपका engineering से मतलब कैसे रिश्ता जुड़ा? मेरा एक्चुअली कोई प्लान नहीं था इंजीनियरिंग करने का. मुझे कुछ पता भी नहीं था इंजीनियरिंग में क्या होता है. और एक्चुअली जब 12th के जब लास्ट वाले वाइवा थे कंप्यूटर के, तब मैं मैम को ये भी बोल के आया था कि मैम आपको जितने मार्क्स देने हैं मुझे दे दो, अगर नहीं देने हैं कुछ भी फेल कर दो, लेकिन मुझे कंप्यूटर से दूर रहना है. और 12th के बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की. तो मतलब बहुत ही
रैंडम वे में मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिया। मेरे पास कोई आइडिया, कोई प्लान कुछ भी नहीं था। अभी भी कुछ भी नहीं है, पहले भी कुछ भी नहीं था, तो वैसे ही स्टार्ट बट But the irony, तुमने क्या सोच के कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया? देयर हैज टू बी सम रीजन, राइट, दैट हाँ, यू देर इज वन यूनिवर्सल रीजन फॉर डूइंग इंजीनियरिंग, स्कोप बहुत है। तो कंप्यूटर में what स्कोप about you लगा तो guys? कर दिया। हाँ, What about you guys? Beginning with Bansri, please. सी आई फील लाइक कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरा आंसर बहुत ही अलग रहेगा, क्योंकि मुझे पहले से इंजीनियरिंग ही करना था। मे बी द रीजन बिहाइंड बिकॉज माई डैड इज ऑल्सो एन इंजीनियर, सो मुझे इतना पता था कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं करना है, एंड मुझे इतना पता था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं करना है। सो मेरे लिए बहुत ही इजी था, बिकॉज आई न्यू दैट आई रियली लाइक कंस्ट्रक्शन। सो मेरे लिए बहुत ही इजी था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग ही करना है। सो Okay, that's great. And what about you, Praveshi? Actually, my brother was in engineering. My father is from engineering background, so ऑटोमेटिकली वो माइंड में आ जाता है कि नहीं मुझे भी इंजीनियरिंग करना है। क्यों करना है? भाई ने भी इंजीनियरिंग किया था, पापा भी वो फील्ड से है, तो और मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं तो इंजीनियरिंग करना है। मैथ्स में मार्क्स अच्छे आते थे, साइंस में मार्क्स अच्छे आते थे, तो हाँ बस इंजीनियरिंग सूट करता है, अभी मार्क्स ही अच्छे आ रहे थे। सही है। तो वही रीजन था इंजीनियरिंग करने का। कौन सी फील्ड में जाना था? पहले इलेक्ट्रिकल में जाना था। इलेक्ट्रिकल में एक्चुअली मैंने एडमिशन भी ले लिया था। फिर पापा ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि नहीं तू एमएस में अगर ट्राई कर, मिल रहा है कोई भी फील्ड में मिल रहा है तो एमएस यूनिवर्सिटी में ट्राई कर। तो आई डिड ट्राई एंड got admission in civil water management, civil and water management engineering. The Wow. most unheard of, we have never heard of this branch, and उसका यूज क्या है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में पता ही नहीं चल रहा अभी तक कि सिविल कर There रहे is हैं। actually हाँ civil water management engineering एक फील्ड है एमएस यूनिवर्सिटी कला भवन टैको में। Igor, Okay. हाँ जिसकी वैल्यू भी है, जिसमें 60% यू स्टडी सिविल एंड 40% यू स्टडी वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा। Okay, और अगर that's great. बंसरी में तो मतलब I have a friend who was in this water management and like water management and civil, and one of them like was in LD with textile. So when I asked them कि आपने क्यों लिया engineering, तो they said बस MS में મળે છે ને LD में મળે છે ને એટલે લીધું. So that is also one of the bizarre reasons that they give for At that time, landing up to it was actually a good reason to give. MS में मिल रहा है, it's a government college, reputation भी अच्छा है, placement भी अच्छा आता है, और impression भी अच्छा रहता है if you pass out from the government college. Okay. सही बात है। That's तो एक good कॉमन to hear. होता है वो टाइम पे। फिर इंजीनियरिंग के 4 इयर्स में काफी कुछ चेंज हो जाता है। सही बात है। सेकंड थॉट्स आने लगता है। करेक्ट। एक साल समझने में जाता है कि हमने एडमिशन क्यों लिया है यहाँ पे। हाँ सही बात है। एक दूसरा साल जाता है, चलो ये टॉपिक लिया है तो अभी समझ भी लेते हैं कि क्या क्यों लिया है इसको, समझ में आता है भी नहीं आता है। थर्ड ईयर में रियलाइज होता है कि नहीं ये तो नहीं करना है। तो फिर सेकंड थॉट्स चालू होते हैं कि करना क्या है। हाँ तो फिर हाँ वो कैसे फिगर आउट किया कि अभी उस वहां से फील्ड चेंज करके सीधा इंटीरियर डिजाइनिंग, वो एकदम मतलब मेजर चेंज हुआ ना। 60% सिविल इंजीनियरिंग आता था, उसमें हमें सब्जेक्ट थे बिल्डिंग डिजाइनिंग एंड प्लानिंग, तो आई वाज गुड एट प्लानिंग, तो मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा था और मैं ऐसे यूं कर लेती थी प्लानिंग, मुझे टाइम नहीं लगता था उसमें। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया कि अभी आगे ये तो नहीं करना है तो क्या करना है, व्हाट्स द स्कोप। तो फिर ऐसे इंटीरियर डिजाइनिंग में मैंने सोचा कि इसमें मैं कर सकती हूँ, काफी कुछ कर सकती हूँ। फिर वो ऐसे सोचा, फिर वो सोचने के बाद आई फील कि नहीं ये फील्ड ही सही है मेरी। तो कुछ तो काम आया एटलीस्ट तुम्हें फिगर आउट करने में कि क्या करना है।
हाँ सिविल कुछ तो काम आया, वरना सिविल कुछ हाँ काम वो नहीं। एक्चुअली वो कुछ तो सिविल degree काम आया। सिविल काम आया Yeah, एंड exactly. एक्चुअली प्रैक्टिकली भी काफी कुछ इम्प्लीमेंट होता है सिविल इंजीनियरिंग का इंटीरियर डिजाइनिंग में भी टेक्निकलिटीज तुम्हें पता हो तो यू कैन इजीली फिगर आउट थिंग्स हम्म। तो इट्स गुड तो Okay. मतलब तुम्हारे पास एक एडवांटेज था कि सिविल बैकग्राउंड था, तो इजीली इंटीरियर डिजाइनिंग में ट्रांजिशन हो पाया। हाँ 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 सही है। और Like, think civil and ऐसा नहीं था interior- कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना था, ऐसा नहीं था Right. Yeah, because the fact she mentioned that her father and her brother were from engineering background. So like obviously she had this clarity at least कि okay, इधर जाएंगे तो ऐसा हो सकता है, right? Right. नहीं इतनी भी क्लैरिटी नहीं थी वैसे ऐसे ऐसे ही Okay. लिया था, मतलब कुछ सोचा नहीं था इतना डिटेल। और बाकी सब चीजों का पता नहीं, लेकिन बंसी ने अच्छा किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं किया, उसने एहसान किया है। मैंने एक बार उसको सिखाने का मैंने ट्राई किया था कि मैं उसको बेसिक कंप्यूटर का कोडिंग सी लैंग्वेज सिखाऊं, लेकिन वो शी इज सो टेरिबल सो टेरिबल I know. I am horrible in coding and I'm horrible in computer. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने सिविल नहीं किया होता तो I don't think कि मैं और कुछ भी कर पाती. So मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये डिसीजन बहुत ही अच्छा निकला है. So yeah. एंड मेरे लिए बिल्कुल उल्टा था. मेरे लिए कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं थी जितना मेरे लिए सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट था. मुझे मेरी फील्ड चेंज नहीं करनी थी, भले ही मुझे यूनिवर्सिटीज या कॉलेज चेंज करनी पड़े. अगर लेट्स से कि अगर मुझे एमएस में एडमिशन ना मिलता तो मैं एमएस में या कहीं और कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैं मेरी फील्ड चेंज नहीं करने वाली थी. तो ये मुझे पता था. इसलिए उसने बाबरिया स्कूल से इंजीनियरिंग किया। Yes, because 11th स्कूल में जाने के बाद मैं वापस स्कूल में गई 4 साल. वो पार्थ से भी बेटर थी। अच्छा, पार्थ से बेटर थी. हाँ, वर्स्ट के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे, हाँ. Right. और Okay. And I think जब So- इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने का क्वेश्चन आता है, I think it's not after 12th. I think it starts from 10th, क्योंकि 10th में ही तुम्हें मैथ्स लेना है या तुम्हें बायोलॉजी लेना है. So वहीं से तुम्हारा डिसाइड होने लगता है कि तुम ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में Exactly, जाओगे या किस में जाओगे. क्योंकि I mean अगर तुमने मैथ्स ले लिया तो there are 99% of chances that you are going to go for engineering, right? There are very few. या इधर डिप्लोमा और Exactly. बैचलर। Exactly. पर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मतलब कोई लोग मेरे जैसे भी होते हैं कि जो लोग बायोलॉजी इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो टफ ज्यादा है मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में, तो वैसे भी But somehow, yeah, whatever is the reason, somehow you figure out what you want to do like after 10th. हाँ, तुम्हें 10th के बाद तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हें किस में जा सकते हो या तुम्हें किस में जाना है. ईदर. सही बात है. और हर्षवर्धन एक्चुअली उल्टा है. मेरा एक्चुअली ऐसा है कि आप फिगर आउट 10th में नहीं कर सकते ना आप 12th में कर सकते हो. यू विल फिगर आउट आफ्टरवर्ड. मतलब वो भी एक टाइम का प्रोसेस है. वो टाइम के प्रोसेस में यू विल फिगर आउट कि नहीं क्या करना है एक्चुअली लाइफ में. हाँ, कुछ लोग मतलब जल्दी कर लेते हैं और उनका डिसीजन मतलब थ्रू आउट सेम रहता है और उनको मजा भी आता है उस फील्ड में. बट काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो नहीं करना होता है, वो कुछ और ही कर रहे हैं. करेक्ट. राइट. क्योंकि मेरे लिए तो ऐसा था कि मुझे 10th में बायोलॉजी भी लेना था एंड मैथ्स भी लेना था. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि हाँ, so we मैं cannot क्या say करूं? कि 10th standard is you know ऐसे benchmark है और वहीं से मतलब सब डिसाइड होता है कि बहुत क्या कम लोग करना है होते हैं जो life 10th के में. बाद डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ मुझे लाइफ में यही हाँ. चाहिए. बाकी हमारे जैसे लोग होते हैं ना but जो my फिगर आउट point नहीं कर is पाते. कि तुम्हें 10th में डिसीजन फिर भी 10th के बाद तुम्हें हाँ, डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा. एनीवेज तुम्हें डिसीजन लेना ही होता है कि इधर टेक बायोलॉजी और इधर टेक मैथ्स और साइंस और कॉमर्स. राइट. और Okay, so that हर्षवर्धन was- ने बहुत अच्छा किया. उसने आईटी किया जो बहुत ही इररिलेवेंट ब्रांच है. वो कंप्यूटर का ऐसा कजिन है जो कोई काम का नहीं है. तो उसने आईटी इंजीनियरिंग किया और पूरे 4 साल सिर्फ एनुअल फंक्शंस किए. उसने और कुछ भी नहीं किया. Co-curricular, yes. I was like, आप
अच्छी बात भी कह सकते हैं और बुरी बात भी, मतलब आई वुड कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव साइड कि सेकेंड ईयर itself I realized okay this is not my cup of tea, I want to do something else and मुझे एक ही सब्जेक्ट पूरे इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा पसंद आया था, that was engineering management, जो economics and engineering management करके सब्जेक्ट आता था, which everyone used to hate, but I don't know, somehow I liked that subject and I realized कि okay मैनेजमेंट जैसी कोई चीज है उसमें हम आगे जा सकते हैं, एंड दैट्स द रीजन, मतलब 2 साल जॉब करने के बाद भी आई अप्लाइड फॉर एमबीए एंड राइट नाउ आई एम अबाउट टू फिनिश माय एमबीए हियर इन सिडनी. सो मेरे केस में सबसे अच्छी बात वाज लाइक टू मीट द राइट पीपल द राइट टाइम थ्रू आउट द इंजीनियरिंग एज वेल एंड आफ्टरवर्ड्स एज वेल. तो आई बिलीव कि हाँ ओके चलो इंजीनियरिंग ले लिया, खराब डिसीजन था बट उसकी वजह से ही आज मैं इधर हूँ, जो भी मैंने अचीव किया है या नहीं किया है, it is all because of engineering today. So I'm somewhere down the line thankful. The meeting no longer has a time limit. अच्छा. Good. Thank you. Thank you. Okay. तो ત્યાંથી कंटिन्यू करूँ कि सो मतलब जो भी मैंने अचीव किया है नहीं किया है, ऑल इज बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई समवेयर डाउन द लाइन बिलीव कि अगर इंजीनियरिंग नहीं लिया होता तो आज मैं इधर नहीं होता. सो दैट वाज माय पर्सपेक्टिव एंड लुक टुवर्ड्स व्हाई आई चोज इंजीनियरिंग. बट यस, deciding factor were like papa ke kuch friends, relatives, they were the deciding factor in my engineering selection, because उसमें I don't blame them as well because I myself had no clarity at that time. I mean कह सकते हो बुद्धू था मैं, मतलब so I did not have any clarity, yes, honestly. So that was the reason, and then yeah then life happened. So moving on to the next question guys. इंजीनियरिंग की बात है, इंजीनियरिंग क्यों लिया, that is also an interesting question and everyone has their own story behind it, right? So do you remember any embarrassing moment in your engineering times, I mean throughout the 4 years, or else in the masters as well? Do you remember any embarrassing moment that you were like oh my god ये नहीं होना चाहिए था? Do you remember any such moment? I'll start. Yes, please. Okay. I have Yes, a lot of Janish, I have a please. lot of such memories. तो मैंने सबसे पहले तो ये किया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आता था, तो उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल ये मुझे याद है. तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स लिख के आपको सबमिट करने होते थे. तो मैंने लास्ट डे तक कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ 1 या 2 प्रैक्टिकल्स लिखे थे, बाकी सारे बाकी थे, 10th तक कंप्लीट करना था. और मैंने क्या किया, मैंने सारे अपने फ्रेंड्स को बोल दिया एक चैप्टर एक प्रैक्टिकल आप लिख दो. तो उन सब ने लिखे और सभी में, क्योंकि सबने अलग अलग लिखे होंगे तो सबके हैंडराइटिंग अलग ही होंगे, और मुझे वो जस्टिफाई करना था कि मेरे हैंडराइटिंग मैंने ही सब कुछ किया है. तो मैं मैम के पास गया, मैम ने पूछा कि ये सब क्या है, मतलब ये क्या तुम क्या लेकर आए हो मेरे सामने, एक तो लास्ट में आए हो, ऊपर से शाम को मैं 4 बजे गया था, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब मैं गया था, और ऊपर से सभी में अलग हैंडराइटिंग्स. तो मैंने इतना ट्राई किया, मैंने जस्टिफाई किया कि मैं खड़े रह के मैंने अलग हैंडराइटिंग में लिखा, बैठ के अलग हैंडराइटिंग में लिखा और मुझे लगा कि मैंने मैम को बना लिया, मैम मान गई, उन्होंने साइन कर दी. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनको ये लग रहा था कि बेटा मैं तुझसे बहुत बड़ी हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है, तेरे जैसे बहुत सारे देखे, बहुत दिवाली देखी है. लेकिन उन्होंने लकीली साइन कर दिया और बाहर निकल गया मैं. तो वो तो एक बहुत ही लाइफ टाइम याद रहेगा मुझे, लाइफ टाइम. Nice. What about you guys? मेरा ऐसा इतना कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है, बट हाँ सेकेंड ईयर में मुझे याद है देयर वाज अ सब्जेक्ट नेम्ड सर्वेइंग, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और समझ में भी इतना नहीं आता था. और तब ऐसा था कि मैं ध्यान भी ज्यादा नहीं दे रही थी स्टडीज में और वो सब में कॉलेज में. तो वाइवा का टाइम था और मैं वाइवा देने गई थी. जो वाइवा ले रहे थे सर, मुझे उनका नाम भी नहीं पता और मैंने वो किसी से पूछा भी नहीं, भाई अंदर बैठे हैं सर, उनका नाम क्या है, लिस्ट बता दो. आई वाज लाइक जाएंगे फोड़ लेंगे, क्या है वाइवा में था सर. फिर गई, सर ने पहले ही नाम पूछा, मैंने तो तुम्हें क्लास में कभी नहीं देखा, तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है?
मैंने बोला नहीं सर मुझे पता है आप सर्वेइंग का सब्जेक्ट लेते हो बट आई डोंट नो योर नेम मैं भूल गई। तो फिर सर मेरे पे इतना चिल्लाए और ये यहाँ तक कि बोल लिया कि तुम आगे नहीं कर सकती, तुम मतलब सर्वेइंग सब्जेक्ट में फेल होगी, लिख के ले लो, तुम ये सब्जेक्ट अब क्लियर कर ही नहीं पाओगी। ओह, चैलेंज दे दिया। हाँ चैलेंज दे दिया। फिर जब भी वो सर मुझे दिखते रहे सामने से, मतलब 3rd ईयर में 4th ईयर में, तो मैं ऐसे जाती थी कि सर देखो पास भी हो गए, अभी ये क्लियर होने को है। ओके व्हाट वाइवा अबाउट से यू मुझे एक चीज याद आई, वाइवा से मुझे एक चीज याद अच्छा। आई। मैंने एक और कांड किया था कि ईएमई का ही वाइवा था, एक्सटर्नल फैकल्टी आई हुई थी और मेरा वाइवा खत्म हो गया। फिर मेरे बाद कुंज का वाइवा था, तो मैंने क्या किया कि उन लोगों ने मेरा फोटो क्लिक किया था बाहर से जब मैं वाइवा दे रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मेरी बारी, मैं भी करता हूँ। लेकिन मेरे फोन में फ्लैश ऑन थी तो उनको पता चल गया उनको पता चल गया तो मेरा फोन ले लिया। फिर बहुत बार माफी मंगवाई, मुझसे पूरा एक लेटर लिखवाया कि भाई सॉरी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा तब जाके मुझे उन्होंने फिर फोन वापस दिया और बाहर निकलने के बाद वो सर ने मेरे साथ फोटो भी खिंचवाया। तो ऐसे बहुत सारे खिंचवाई। हाँ सर ने मेरे साथ, वो एक्सटर्नल फैकल्टी ने मेरे साथ फोटो खिंचवाया। दैट्स ग्रेट। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट्स है नहीं, क्योंकि एक तो मैं स्कूल के बाद सीधा स्कूल गई थी। मतलब मेरा इंजीनियरिंग, मेरा बैचलर्स तो ऐसा स्कूल जैसा ही था, लेकिन मेरे मास्टर्स में एक है, तो मेरी एक बहुत ही जल्दी क्लास होती थी। सो मुझे याद है मेरा आई थिंक 2nd सेमेस्टर में मेरा वेंसडे को बहुत ही जल्दी क्लास रहता था, लाइक वो 6 बजे शुरू हो जाता था, और मंडे नाइट को मेरा दूसरा क्लास रहता था जो 11 बजे खत्म होता था। तो मैं हमेशा वेंसडे मॉर्निंग को लेट जाती थी। तो एक बारी मैं इतना लेट गई कि उन्होंने मुझे पूरे क्लास में बाहर खड़ा रखा, जैसे वो स्कूल में नहीं करते कि मतलब मंडे नाइट का आपका 11 o'clock का लेक्चर खत्म होता था, देन you had more than 24 hours, you had Tuesday and then you attended the lecture of Wednesday. Excuse me, I meant Tuesday night. So एक रात पहले ही, सॉरी, तो एक रात पहले ही, सो ट्यूसडे नाइट को मेरा 11 o'clock को खत्म होता था एंड वेंसडे मॉर्निंग 6 o'clock को मेरा दूसरा क्लास होता था। अच्छा, अभी अगर 11 बजे खत्म हो रहा है तो मैं घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी, क्योंकि अभी मास्टर्स में है, पेरेंट्स के घर पे नहीं रह रहे हैं, तो मैगी वैगी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ तो खा के सोना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लास भी बहुत जल्दी शुरू होती थी ट्यूसडे नाइट वाली। तो और जब उन्होंने मुझे एक बारी बाहर खड़ा रखा था पूरी क्लास के सामने, मैंने गलती ये की कि मैंने उनको वापस पूछा थोड़ी देर के बाद कि मैं क्या प्लीज अंदर आऊं, और उन्होंने मुझे इतना डांट दिया कि मैं इतना ज्यादा एम्बेरस हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं बहुत ही लेट हूँ और मैं बाहर खड़ी हूँ। और उससे ज्यादा मेरे लिए थी नहीं। आई मीन मुझे वैसे कुछ याद नहीं है, पर ये बहुत बहुत अच्छा किया कि ऐसा पहली बार हुआ होगा, मैंने पहली बार सुना कि कोई इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में जाके कोई लेक्चर के बाहर ऐसे स्कूल स्टूडेंट की तरह खड़ा है। हाँ मतलब दैट्स वियर्ड, आई मीन आई हैव आल्सो नॉट हर्ड कि स्कूल मतलब क्लास के बाहर खड़ा रखा, और वो भी मास्टर्स में। यूजुअली वो डोर्स बंद रखते थे, वो तो अच्छे थे कि मैं खड़ी थी तो उन्होंने डोर्स खुले रखे। अगर डोर्स बंद, एक्चुअली डोर्स बंद कर देते ज्यादा अच्छा रहता, मुझे मेरा ज्यादा एम्बैरेसिंग नहीं लगता। हाँ, बट क्योंकि मैं खड़ी थी ऐसे दरवाजे पे ही, ऐसे आधा बाहर आधा अंदर ऐसे खड़ी थी, तो फिर उन्होंने आई थिंक दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन मैं ऐसे ऐसे करके देख रही थी कि क्या वो लगा रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन चल रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। उसके बाद ऐसे लग रहा था कि मैं वापस 2 क्लास नहीं जाऊंगी ताकि लोग सब भूल जाएंगे, उसके बाद फिर तीसरी या चौथी क्लास में जाऊंगी जब किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। सही है। प्रोग्रामिंग विद सी के बाद का तेरा सेकंड डिजास्टर हुआ होगा ये, कह सकते हैं, क्योंकि एक तो वो जो प्रोफेसर है वो बहुत ही शांत एंड बहुत ही स्वीट टाइप के प्रोफेसर है, उनको मैंने चिढ़ा दिया, मतलब लेकिन मुझे आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे इतनी ज्यादा नींद आती है, मुझे नींद बहुत आती है, रिगार्डलेस मॉर्निंग, कुंभकर्ण की पति जी, बहुत नींद आती है, यस।
और 6 बजे क्लास शुरू होती है, मतलब 15 मिनट तुम्हें चल के क्लास तक जाने में लगेंगे, अगर ठंड है तो ज्यादा, और एटलीस्ट 30 मिनट तो रेडी होने में लगेंगे, नहाए नहीं तो, अगर नहाए तो ज्यादा, तो मिनिमम 45 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब तुम्हें 6 o'clock का क्लास है, तुम्हें 4:45 को उठना है, भाई तो साहब। मतलब कोई बात नहीं, अब सब भूल गए हैं तो अब सब ठीक है। So guys, ये तो रही embarrassing moments की बात, right? But I'm sure along with these embarrassing moments, you must have had some sort of failures. या तो एग्जाम में फेल, या तो फिर कोई भी, मतलब चलो एक ये गोल अचीव करने का सोचा था बट ये नहीं हुआ, या any sort of failures that you may have came across in those 4 years. तो वो जो failures थे, उनसे आपने क्या सीखा, and what sort of failures were they were कि how do you look today? I mean, उनकी वो जो फेलियर्स है उनकी तरफ आज आप कैसे देखते हो उनको, कि उन्होंने आपको क्या सिखाया, एंड व्हाट ड्यू टू दिस आज आप कौन सी जगह पे हो? So ये फेलियर्स सिर्फ हम इंजीनियरिंग लाइफ की ही बोल रहे हैं या फिर एनी फेलियर्स ऑफ आवर लाइव्स? Any failures? I mean, Particularly in since we are engineering. talking about अच्छा ठीक है, since we are talking about engineering, तो yes. ओके, आई विल नॉट स्टार्ट। Okay, so I will start. Okay. So like during the third semester, everyone knows Maths 3, right? So Maths 3 is like one of the most nightmare कह सकते हो बहुत लोगों की जिंदगी में, and today as well लोग पेरेंट बन जाते हैं तभी भी Maths 3 उनका क्लियर नहीं होता है, हाँ, हमें right? पता है। और मैंने ऐसा सुना था, एंड लाइक आई यूज्ड टू गो टू ट्यूशन एज वेल, और वो जो ट्यूशन के जो सर थे, ही वाज लाइक कि मैथ्स 3 अगर पहली बार में क्लियर नहीं किया ना, तो एक बार चिपकेगी ना उसकी केटी, तो चिपकती ही रहेगी, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दैट थिंग। तो वो जो थॉट है ना, वो बहुत स्कैर करता था, तो रिजल्ट ऑफ विच आई डिड द मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर मैथ्स 3, राइट? बट मैथ्स आई लाइक इट, सो मैंने क्या किया कि मेरे बगल के घर में 6 स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू लिव 6 स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के ही थे बट रेंट पे रहते थे। तो उनमें से 4 लोगों को अगली रात जब एग्जाम थी उसके अगले रात मैंने उनको पढ़ाया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन लेवल, जो भी मतलब जो भी आता था, आई मेड देम स्टडी। और आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ मैथ्स 3 मतलब मेरा तो निकल ही जाएगा। एग्जाम के दिन I still remember 6 supplementary मैंने भरी थी, and I was the very first person in the class to complete the exam, and I was damn sure कि 70 में से I will easily score 60+. Results आए, जिन को मैंने पढ़ाया था, जो लोग बोल रहे थे फेल हो जाएंगे, passed, I failed. Like that was very first encounter with failure in an examination. तो फिर ऑब्वियसली मैंने घर पे नहीं बताया तभी तो, और आज के दिन तक माय फादर डजंट नो दैट ओके आई फेल्ड इन मैथ्स 3, बट वो जो मोमेंट था तब से आई डिसाइडेड कि नहीं, अगर चलो मेहनत करने के बाद भी ये रिजल्ट है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो जो है वो, रीचेकिंग में भी कुछ हुआ नहीं, तो आई लर्न के ओके जो है वो दैट इज माय लक, माय डेस्टिनी, कि ओके मेरा फेलियर ये था तो आया, बट अभी क्या, अब मैं तो छोड़ नहीं सकता, राइट? और एक सब्जेक्ट की वजह से आई कैन नॉट से कि ओके इंजीनियरिंग ही खराब है या मैं सेइंग कि इवेंट फेल होता है, एक इंसान फेल नहीं होता, राइट? तो वो मैथ्स 3 जो इवेंट था वो फेल हो गया, बट थैंकफुली नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई गेट द सब्जेक्ट एज वेल। आई वंडर कि वो जो पेपर जिसने जो एग्जामिनर होगा जिसने वो पेपर मेरा चेक किया होगा वो शायद कुछ फूंक के बैठा होगा या पी के बैठा होगा कि जिसको नहीं दिखा कि बंदे ने 6 सप्लीमेंट्री फेल किया और इसको फेल करते हैं, आई डोंट नो क्यों, बट यस दैट थिंग टॉट मी कि एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग थिंग। तो आई एक्सेप्टेड दैट फेलियर एंड देन मूव्ड ऑन। अगर मैं वही बैठा रहता कि यार नहीं फेल हो गया अब क्या,
there is no point of crying on the thing which has already happened and you cannot do about anything, right? So वो चीज ने मुझे ये चीज सिखाई. So that was my story of the failure regarding to the engineering part. And yes, let's jump on to someone else. I have no such story of failure because मैंने engineering को इतना seriously लिया ही नहीं था कि failure आए भी होंगे तो I didn't notice. Such कोई failure आई नहीं. That's a very great answer, Maida. बहुत अच्छा आंसर है ये. हाउ टू जज अ फेलियर एक अलग टॉपिक होना चाहिए. सही है. Okay, now मतलब मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज है फेलियर वाली. फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी स्टोरीज है. वो ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे जरा भी पसंद नहीं था, मुझे वो करना ही नहीं था. इसलिए मैंने वाइवा में भी मैसअप किया, मैंने सभी जगह पर वैसे ही किया था. तो मेरे मतलब एग्जाम में ऐसा हुआ था कि वो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम थी और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था और मुझे कुछ लिखना भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि मेरी मार्कशीट में एफ या कुछ भी लिखा हुआ हो. तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं. मुझे याद है तुम लोगों के तो फोटोज रहते थे स्कूल में वॉल पे. तुम्हारे प्रयोग तुम दोनों के तो स्कूल में हम दोनों के फोटोज रहते थे टॉप 10 या 15 या 20 के लिस्ट में. लेकिन मतलब कॉलेज में कुछ नया ट्राई करना था तो पेपर में कुछ लिखा नहीं और ऐसे बहुत ठंड थी तो आज तो गया अने मतलब उसके बाद ऐसा हुआ कि डेफिनेटली मतलब मैं एफएफ आ गया. तो मैंने तो हर जगह स्टेटस डाल दिया कि पहली बार फेल हुआ हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मूवी देखने जा रहा हूँ ऐसा करके. फिर सेकंड टाइम ज्यादा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि सेकंड टाइम 5th सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट आता था और उस टाइम पे हमारे प्रिंसिपल सर ने एक पूरी कमेटी बनाई थी फोटोग्राफर्स की, जो कॉलेज के हर एक इवेंट्स और सब कुछ कैप्चर करे. तो उसमें मैं था और एचओडी की परमिशन से बहुत कुछ काम करता था. और जब उनको पता चला कि मैं एमआई में फेल हो रहा हूं तो मतलब वो बहुत एम्बैरेसिंग था ज्यादा, क्योंकि मैं उस टाइम भी फेल हुआ था, क्योंकि मुझे उसमें भी कुछ नहीं आता था. उसमें भी मैम कुछ भी पढ़ाती थी और मैं कुछ भी लिख के आ जाता था. तो एमआई में मैं 2 बार फेल हुआ. फिर उसके बाद मास्टर्स में भी अगेन मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन मास्टर्स में मुझे एक प्रोफेसर ने ये बोला कि ये सॉफ्टवेयर के लिए तुम नहीं बने हो, तुम वापस चले जाओ. और अभी देखो मैं वापस आ गया यहाँ पर, तो मैं इंडिया में बैठा हूँ. तो वैसे ही है मतलब फेलियर और मेरा मतलब फेलियर्स और मैं मतलब हम दोनों की लॉन्ग लव स्टोरी जैसा ही है, तो लंबे टाइम तक चलता रहेगा. अच्छा, नाइस. मेरे पास कोई स्टोरी है नहीं ऐसी बताने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ इंजीनियरिंग लाइफ की बात करें तो मैं अंडरग्रेड में बहुत ही ज्यादा स्टूडियस थी ऐसा लग रहा है मुझे. मैंने बहुत ही अच्छे से किया. सो मेरे हमेशा 8.5 अबव तो आए ही है. और मास्टर्स में तो ऐसा था कि अब करना ही पड़ेगा क्योंकि जॉब्स चाहिए यहाँ पे. तुम्हारा वीजा स्टेटस मेंटेन करना है तुम्हें, ये वो वगैरह वगैरह. तो मास्टर्स में भी ऐसी कोई फेलियर स्टोरी तो मेरे पास है नहीं. सो आई थिंक मेरी फेलियर स्टोरी में आई थिंक आई कैन think of one story. So मेरी मास्टर्स में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 4 क्लासेस ले लिए थे. यूजुअली स्टूडेंट्स 3 क्लासेस ही लेते हैं और मेरे 4 क्लासेस में से 3 कोर थे और 1 ही इलेक्टिव था. एंड अगर तुम लोग नहीं लाइक कोर इलेक्टिव किसी को नहीं पता तो कोर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द इलेक्टिव वंस. और मेरा एक कोर क्लास था, उसमें मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, जो मेरा डिजाइनिंग का क्लास था. अच्छा. और ना मुझे प्रोफेसर की बातें समझ आ रही थी कि वो क्या समझा रहे हैं, ना मुझे कुछ समझ आ रहा था. जैसे कोई एक फ्लो होता है ना कि कोई एक सब्जेक्ट एक फ्लो में सिखाना चाहिए या सिखाते हैं, तो वैसा था नहीं. उन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि मास्टर्स में है स्टूडेंट्स तो उनको सब पता ही होना चाहिए. तो वो बहुत ही ऊपर वाले, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ही ऊपर वाले लेवल से शुरू करते थे. और उस वाले क्लास में मेरा B- था. और फिर मैं प्रोफेसर के पास गई थी उनको बटर लगाने के लिए, लेकिन वो कुछ काम नहीं हुआ. तो मेरा अभी भी मार्कशीट में मेरा पास
B- ही है वो कोर्स में, तो आई थिंक आई कैन कंसिडर दैट वन एज माई फेलियर, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कोर्स तो मैं कर ही लूंगी. सो दैट कोर्स इज कॉल्ड मेसनरी डिजाइन. तो तुम्हें वो पूरा डिजाइनिंग का ही कोर्स था, लेकिन उन्होंने, जब तक कि मुझे याद है, उन्होंने जो फाइनल एग्जाम लिया था उसमें उन्होंने पूरा स्टील डिजाइन के क्वेश्चंस पूछे थे. एंड यहाँ पे यूएस में या फिर कहीं भी इंडिया के बाहर सारे एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह वगैरह सब प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, तो कुछ भी टाइप का पूछ सकते हैं एग्जाम्स में. तो उन्होंने पूरा स्टील डिजाइनिंग का पूछा कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में भी, obviously मैं नहीं थी उनके स्टील डिजाइनिंग के क्लास में. So I think that is one of my failures, I can say. Okay. So moving on towards the end of this podcast, guys, how has been your journey post engineering, and how do you look forward to your careers, prospective careers? Not necessarily obviously regarding the engineering thing as only, but then how do you look forward to your career and your life now? And have there been any changes that how you look forward to life as well? So I know this is a deeper question as such, but then yes, I would love to hear your answers on this particular question. So, and for like the audience's reference, Prashi has some commitments to fulfill, so she'll be leaving after answering this question. So we'll begin with Prashi. Actually, after engineering, when I took admission in interior designing, मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड सब मतलब सामने से आ रहा था, और ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे सामने से. अपॉर्चुनिटीज ही सामने नहीं आ रही थी मेरे पास कि मुझे लगा नहीं, आई एम द मतलब मैं सही रास्ते पे भी जा रही हूँ, मतलब दिस इज द वे. मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहे आपको, मतलब लाइफ आपको अब पुल बैक नहीं कर रही, वो आपको पुश कर रही है सामने से. तो लाइक यही सही है, लाइफ भी सपोर्ट कर रही है. तो मतलब आई फील ग्रेटफुल कि मतलब सामने से सब कुछ हो रहा था. सो बस मैं तो फ्लो, मतलब आई जस्ट went with flow. That's good to hear. Guys, Prashi has to go. She has some commitments to fulfill. So thank you very much, Prashi, for sharing your story. And at the very first, the very first minute you mentioned that you have never done this before and you are an introvert. But it takes a lot of courage to come forward to in front of the camera and to share your stories with strangers. I mean, obviously these are all your friends, but I am a stranger yet. So thank you very much for sharing your story and your successes and failures. And I wish you all the best throughout your life in your prospective career. And I hope you achieve everything that you want to. And yes, enjoy your day. Stay safe, stay healthy, and we'll catch up soon in some other podcast maybe. Maybe अगर आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन जाए तो अगर शायद कभी इंडिया वापस आए तो हमारे घर डिजाइन कर लेना. नहीं, सक्सेसफुल की बात नहीं है, वो डिजाइन वाला पर्सपेक्टिव जो है ना, उसके लिए अलग से पॉडकास्ट करेंगे, उसमें भी ये आएंगे. हाँ, एग्जैक्टली. तो क्रिएटिव पॉडकास्ट हमें एनलाइटन करने के लिए. Yes. So thank you very much, Prashi, again. And yes, we hope Janice for inviting me for such a great session. After graduating from masters, I think my life is going very well. I think it's amazing. It is how I wanted it to be. So plus on top of that, I mean there are struggles, right? I mean, we all struggle in in our lives, especially when you're like fresh out of the college and trying to figure out your career in the real world, right? But I think all those struggles don't pull you down. I think those struggles really push you up and make you a really, really better employee, because right now we are just talking about the career struggles. So I would say employees. So actually आज ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था. So मुझे कोई तो टास्क मिला था जो मुझे लगा कि I can easily do it. So I volunteered
Like I volunteered and I was like ठीक है मैं कर लूंगी. And जब मैंने करने के लिए ट्राई किया, so maybe वो टास्क हो जाना चाहिए था and within an hour, and मैंने 3 घंटे लगा दिए, फिर भी मुझसे नहीं हुआ. So when I was coming back home, I was very disappointed and everything, right? So there are some times where you feel that, oh my god, like क्या मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा. But other than that, I think my life is treating me very very well. जो जितनी मैं मेहनत, if I'm putting out all the efforts, I'm getting a lot of in return too. So I'm very very grateful for whatever how I am and where I am right now. And of course इसके पीछे बहुत बड़ा reason है that I was not like this before. So मेरा सबसे पहले मेरा struggle शुरू हुआ था with a summer internship. So मेरे सारे दोस्तों के पास already internship थी summer में, और मुझे इतना confidence था कि मेरे पास भी internship आ जाएगी. So I did not take any classes in summer. And because I thought that I was going to go for the internship, मुझे internship मिल जाएगी, I did not even plan to like visit India or travel to India in summer. So now if I don't even get the summer internship, मैं क्या करती पूरे summer में? That was the question. So उस time में मेरा struggle बहुत ही ज़्यादा था. So I just hate this process of like job application and then follow up and this and that, and No one loves this process. rejection. But yeah, no one loves it. So- That's a part. I mean, that's the That is most the part, exactly, right? That's actually You the have to first do. step that you have to make in order Yes. to like be an employee. But so वो सारी struggles was, I mean, they were worth it, but अगर मुझे वापस करना आएगा तो I don't think that मैं वापस करूँगी. I mean, I would not like choose to do it again. But otherwise, like my life is going amazing क्योंकि एक internship हो गया, उसके बाद you can also, क्योंकि तुम्हारे पास अभी experience हो गया है, तो So you that can makes show you that easier, yeah. experience. Exactly. So like next steps उसके बाद easy हो जाते हैं. It's like कि पहला step it's like very high, and then बाकी के steps थोड़े थोड़े छोटे होते हैं, so that you can climb up pretty easily. But अगर तुम पहले step में गिर पड़ जाओगे तो फिर नहीं होगा. So I think being mentally strong, especially when you are in a new country, living by yourself, is very very important. जो मैंने यहाँ पे बाहर आके सीखा है, that मुझे घर की बहुत याद आती थी, मुझे मेरे फ्रेंड्स की बहुत याद आती थी, ऑफ कोर्स. फिर ऐसा होता था कि क्या ही हो जाएगा अगर मैं ये इतना छोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में वो भी था. सो like you always have this demon and this angel in your head कि वो हमेशा वो झगड़ा चलता रहता है कि अरे छोड़ो नहीं करना ये वगैरह वगैरह, हो मैं देख लूंगी बाद में, क्योंकि वो तो हमारी, I don't know if you guys are from GTU or not, but that's the GTO mentality. Yes, we are from GTU. Proudly Right. from GTU. So that's the GTO mentality कि वो अगले रात को देख लेंगे, वो तब की तब देख लेंगे. That's an I don't engineering think mentality. that वो engineers के लिए by That's default हो जाता है. engineers. Exactly. You become more jugadu when you land up in engineering. See, And I don't even think being जुगाड़ू is bad. Like जुगाड़ होने ही चाहिए. that's मैंने not बहुत bad. जुगाड़े किए. That's not जुगाड़, exactly. exactly. क्योंकि- It's very smart way हाँ. to like live your life. But what is really bad is procrastination. I think if you procrastinate कि ठीक है अभी कल से शुरू करूंगी, मैं ये कर दूंगी, उसके अगले टाइम देख लेंगे, नेक्स्ट वो आएगा तब देख लेंगे, that is something that puts you in a trouble. So Who अगर would मैंने know कोई this better than I and Janish? yeah, so I think procrastination is this Yes. horrible poison. Yeah, जो मैंने सीखा है. But other than that, I think my life is great and I'm very very grateful for everything. We are Yeah, victims thank of you. our own crime. हमारे लिए तो ऐसा है. Yeah, exactly. I mean, we Thank all you. are victims of our own crimes. हम सबने crimes किए हैं. That's not. नहीं That's not bad. प्रोक्रेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि हम दोनों उसकी वजह से हमें बहुत कुछ हमारा लेट स्टार्ट होता है और बहुत कुछ लेट खत्म भी होता है. हाँ, मतलब that's okay. Yeah, that sometimes. Yeah, लेट learning. स्टार्ट होना is not bad. हाँ, लेट exactly. खत्म हुआ, अगर लेट वो- खत्म होने के तब भी तुमने कर दिया, that's still good. लेकिन वो जो प्रेशर होता है तब, हाँ, वो तो है. वो बहुत ही भयंकर होता है. Yes. So
Thank you very much for sharing this. And you are right. Like there are ups and downs, and everyone is Yeah. struggling in their own aspects. Everyone is Right. struggling, and everyone will be a struggler till the last breath. And yes, sharing my story, I would say that yes, after engineering, life is colorful. I mean, I've tried different colors of life. Like for example, engineering ke baad I tried theater. Then I started writing. I started blogging. I started like last year in 2020 when coronavirus happened and when everything like the quarantine and everything happened. I started my YouTube channel. I put out the very Oh first wow. video, Okay. and yes, and I did not imagine that okay, I will do these things as well, right? So I discovered various aspects of my inner self, and it has helped me, you know it has made me a better person, per se, as such. Like be I introspect more. I ask myself more questions. I ask more questions about different things, the new things, or some things that I don't know. I'm more curious, and these all things I'm loving it. I mean, yes, still till date I don't have any clarity regarding my career. Okay, where will it go? But then I believe ki that's okay. Not everyone has that particular clarity, and it's okay to not have that clarity at this age, because uh, I I don't know. सब कुछ That's what my एक्सप्लोर होना thinking चाहिए, is. मतलब सब कुछ एक्सप्लोर Ha, होना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है. Yeah. yes, and I believe. There is one very like proof method that is called trial and error. So trial and error करते रहो, Yes. कभी हाँ, ना कभी तो you'll get the right answer, right? करेक्ट करेक्ट. Yes. Yeah. So I believe ki life has a lot more to throw at me, and I have a lot more to explore, and I'm ready to accept the challenges and the problems and everything that comes across. But yes, I just don't want to stop, and that's what my calling is. And I've That's been good. grateful That's that very good. okay, and I've been grateful that I've met different people at different stages, and right people at different stages, particularly. So for example, I met Janish, and I met in the second year of college, and we have hardly talked, I mean, throughout the 4 years. But then post engineering, we became such a good friends that randomly bhi jab kabhi baat karenge na, तो it will go हाँ. on for hours. So that's what our bonding is, that we are not best of friends. Still, if we talk, we will have something to talk, which is of a quality thing. So, and yes, I've been grateful, and I'm thankful to the Almighty for giving all such pleasures and everything till date. And yes, that's what my story is. And yeah, Janish, I'm eagerly waiting to hear your story. That how is your, because your journey has been a roller coaster. Yes, as And always, as always. एंड जस्ट टू इंटरप्ट, अगर 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 जैनिश का जो पर्टिकुलर स्टोरी और पॉडकास्ट नहीं देखा है ना, तो मेरे खुद के चैनल पे है, वो जाके देखिए. हाँ, वहां पर फुल दैट इज वहां पर फुल डिस्क्लोजर ये मिल जाएगा कि कैसे, मतलब मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, कैसे सब कुछ चल रहा है. तो लेकिन मतलब इंजीनियरिंग में जब थे तब भी सब कुछ रैंडमली कर रहे थे, जो भी एक्सप्लोर करना था बिंदास कर रहे थे, कोई कोई टेंशन नहीं था, कोई डर नहीं था. अब भी नहीं है. बिजनेस स्टार्ट करना था लेकिन पता नहीं था कैसे करना है, लेकिन लाइफ ने ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया कि अभी और कुछ करने को बचा नहीं था, तो चलो बिजनेस स्टार्ट कर देते. तो अभी देखिए हम लोग रिफ स्क्रिप्ट की चैनल से ही अभी पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर दिया, हमने बात कर रहे हैं हम यस. यहाँ पर. और उसके अलावा मुझे हमेशा, मतलब हर्षवर्धन और ब्रिजेश दोनों से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला है कि वो लोग बहुत सारी चीजें एक साथ एक्सप्लोर करते हैं. मतलब मैं उन लोगों के जितना मल्टीटास्कर नहीं हूँ और नहीं कर सकता इतने सारे चीजें, लेकिन फिर भी मैं मुझे ब्रिजेश ने हमेशा बोला था कि वो हमेशा कॉलेज के टाइम पे बोलता रहता था कि तू तू अच्छा राइटर बन सकता है, तू कभी लिखना स्टार्ट कर. तो मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब जब कॉलेज खत्म हुआ तब मैंने जब जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सोचा, उस हिसाब से मैं लिखता गया. अभी भी मतलब अच्छा राइटर नहीं हूं, मैं राइटर भी नहीं हूं, लेकिन एक्सप्लोर करते करते मुझसे अच्छा, मतलब मैं जो भी सोचता हूँ मैं अच्छे से लिख पाता हूँ. आई कैन पुट माई थॉट्स इनटू राइटिंग. तो वो बहुत ही अच्छा हो रहा है कि बिजनेस तो हो ही रहा है, साथ में अपना कुछ कुछ क्रिएटिव जो माइंड जो होता है ना, वो सेटिस्फाई हो रहा है, Yes. करने को मिल रहा Yeah, है. I think most important thing, and I think the biggest difference we have
like our generation and the generation before, that they stop exploring at some point. Correct. They accept that okay, now they have to settle down and this is their situation, so they just accept, and they, even though they don't like doing what they do every single day, they still do it just because अभी क्योंकि they have stopped exploring. So I think our generation, at least people I know, they have never like stopped exploring कि अगर ये नहीं हो रहा है तो कुछ और, ये नहीं हो रहा है तो कुछ और, and they also like stick to their hobbies, right? Like even though I think Janish, you never stopped writing like anything. You were still doing something, even if it's like a small thing. You were still like you kept doing it ever since you started, right? So I think that is very important, especially after you graduate, क्योंकि मुझे लगता है that because you work so much every day, तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए that you can do on weekends, or that you can do when you want to have a break from your work, right? Correct. So like besides of course engineering, you also should have some sort of like hobby that you follow, or something that you follow, you know. Correct. Absolutely. Go ahead. Yes. तो अब एक मिनट. So guys, this was it, the very first episode of Fingers and All Fingers and Thumbs presented by RipScript. See, इसका मोटिव ये नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को लाकर बिठाकर उनकी स्टोरीज सुनानी है. Our motive is to inspire you, to make you realize that, see, failures are just temporary in your lives. So everyone has their own story and own struggles. जैसे आपने देखा कि Prayoshi, she landed up in engineering. She wanted to do that engineering, and how she realized that okay, अगर इसमें मैं अच्छी नहीं हूँ तो ये चीज में हूँ, तो I should go here. We heard about Bansri's story as well, that how she is grateful कि okay, how sincerely she has finished her studies, and now how she looks forward to her career. We have also, heard of Jainish's story. That Jainish ki story to is very up and down, and I would really want you guys to hear that story. Not selling my channel here, but yes, his story is quite an inspiration for, like, it has been an inspiration for me as well. And I believe अगर आप वो स्टोरी सुनोगे कहीं ना कहीं, तो यू विल फील के ओके, अगर बंदा इतने सारे फेलियर्स या इतने सारे डिफरेंट इवेंट्स झेल कर भी इधर आ सकता है, तो यस, यू कैन डू एनीथिंग. एंड या, so the Instagram handle of Prayoshi, who is an interior designer, she puts her work there, and it's a good content. You should check out. The Instagram handle is listed here, and we'll link down in the description as well. So talking about RipScript ka LinkedIn, then Instagram, everything is listed here in the description as well. Apart from that, Jainish has his own personal page. I'm thankful for, and I would like to thank Jainish for inviting me to host this show along with him. And yes, we really look forward to some more interesting topics, some more interesting guests as well. And yes, if you have any interesting topics, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक टॉपिक है कि फोटोग्राफी, तो I'll call different photographers from different backgrounds, I mean different genres of photographers, and call them up, get together and then do a podcast. So अगर आपके पास भी ऐसे कोई टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए. Let us know and reach out to us if you have any queries, any questions regarding anything, your career or any technical thing that you are stuck. If we can be helpful, we'll help you. If we can be helpful, we'll help you out with in any ways we can be. And that is it. Please like, share, subscribe. ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, but yes, please share. ये जो podcast है, share करो अपने engineers, अपने teachers, professors सबके साथ, and let them know that okay, there is this thing called All Fingers and Thumbs. By the way, एक interesting thing, Jainish, All Fingers and Thumbs का आप मतलब बता सकते हैं प्लीज ऑडियंस के लिए? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई केम टू नो. यस. तो मतलब RipScript का ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का पर्पस यही था कि एक ऐसा पॉडकास्ट हो जिसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट हो और अलग अलग टॉपिक पर हम लोग इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस कर पाए अलग अलग लोगों के साथ. तो और सभी लोग एक्सपर्ट नहीं है कोई भी फील्ड के, हर एक अपनी अपनी ओर से ट्राई कर रहा है, या चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, और सभी लोग हमारे जैसे ही, हमारी एज के हैं या फिर हमारे जैसे ही नए हैं. तो उसके लिए नाइव जो वर्ड होता है ना इंग्लिश में, उसके लिए एक इडियम है, ऑल फिंगर्स एंड थम्स.
तो हमने इस पॉडकास्ट सीरीज का नाम ही ऐसा रखा है कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, हर एक के अपने अपने ओपिनियन है, हर एक के अपनी अपनी जर्नी और अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। तो यहाँ पर कोई आपको एडवाइस नहीं दी जाएगी, सिर्फ अपने अपनी बातें शेयर की जाएगी और अच्छे अच्छे कन्वर्सेशन, अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी। That's great. So that was it from our side. And I Yeah, would thank you like so to, much for the invitation, and yeah, I loved it. and I would like to thank all of you for being part of this series. And the first episode was a blast. So we are really looking forward to have more interesting conversations. Thank you very much.